Now let's see. Group 18 elements. Group 18 elements are also called as noble gases. Earlier they were called as inert gases because they were totally unreactive, but after the compounds of xenon and few radon and krypton have been synthesized, so उसके बाद इनको noble gases बोलते हैं. तो यहाँ पर कौन से elements हैं? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and the last one is oganesson. ठीक है, इसमें से जो लास्ट टू है रेडॉन एंड ओगेनसन, दीज आर रेडियोएक्टिव इन नेचर. Rest all are non-radioactive. Helium belongs to first shell, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. What is the general outer shell electronic configuration? General outer shell electronic configuration is Ns2np6. Except for helium. Helium का Ns2 होता है configuration, उसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सब एलिमेंट्स का Ns2np6 होता है. That means they have 8 electrons in the outermost shell. ठीक है, except for helium. Helium के केस में only first shell है, तो first shell can accommodate only 2 electrons. Rest all the other noble gases have 8 electrons in the outermost shell. That means they have complete octets. अब इसी की वजह से, क्योंकि इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इसीलिए इनका रिएक्टिविटी लो होता है. ठीक है, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव. सो जनरली दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, ओनली फ्यू कंपाउंड्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, दैट टू ऑफ xenon, है ना, few of krypton and radon have been identified. Now let's talk about the abundance. So except radon, all the noble gases occur in the atmosphere. Except radon, all noble gases occur in the atmosphere. Although उनका जो percentage है, that is very low. It is approximately 1% by volume. ठीक है? So the percentage abundance of all the noble gases is very low. It is almost 1% by volume. ठीक है? और इसमें से जितने भी noble gases है, argon is the major constituent. Radon तो exist नहीं करता atmosphere में, and argon is the major constituent in the atmosphere. The percentage is very low and argon is the major constituent. ठीक है, so this is the percentage by volume in dry air or atmosphere. Then helium and neon are found in minerals of radioactive origin, जैसे pitch blende, monazite, clevite. ये जो कुछ minerals होते हैं, इसमें helium and radon is present. ठीक है, so which minerals? Minerals of radioactive origin like pitch blende, monazite, clevite. In सब में helium and sometimes neon is present. Then radium जो है, जब ये disintegrate करता है, produces radon and helium. ठीक है, so radon is also produced from disintegration of radium. Radium is atomic number 88 and mass number 226. तो रेडियम जब डिसइंटीग्रेट करता है या डीके करता है, रेडॉन और साथ में हीलियम बनता है. हीलियम को हम कैसे लिखते हैं? 2He4. ठीक है, हीलियम इज रिटन एज 2He4. अब ये जो इसका, अगर आपको ये याद रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है, सो रेडॉन इज 86. ठीक है, बिकॉज, और इस तरह से बैलेंसिंग करना है कि 86 प्लस 2 88 इसके बराबर हो जाए. The atomic numbers in the mass numbers must be equal. So 88 radium 226 when it decays, it produces radon. तो helium में अगर 2 है atomic number, तो this will be 86. So that the sum is equal. Similarly, if this is 4, then this must be 222. Why? Because 222 plus 4 gives us 226. ठीक है,
तो ऐसे हम मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स गेस कर सकते हैं. किसी एक का अगर पता है तो दूसरे का गेस कर सकते हैं. सो रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से 2 गैसेस बन रही है. कौन सी गैसेस? सी दीज आर ऑल गैसेस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. ठीक है, ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो रेडॉन भी गैस है और हीलियम भी. सो रेडियम की डिसइंटीग्रेशन से 2 गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, रेडॉन एंड हीलियम. ठीक है, तो मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम क्या होता है? वन ऑफ द मेन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस. और xenon and radon, they are the rarest elements of the group. They're not found generally. ठीक है, रेडॉन एंड xenon वो रेयरेस्ट एलिमेंट्स है. रेडॉन तो एटमॉस्फेयर में भी नहीं है ना, एंड एज सच नॉट इवन इन मिनरल्स एज सच. सिर्फ ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम से प्रोड्यूस होता है रेडॉन. तो रेडॉन इज लाइक रेयरेस्ट इन द ग्रुप एंड xenon इज आल्सो वेरी लेस अबंडेंट. आर्गन सबसे ज्यादा अबंडेंट है कहां पर? एटमॉस्फेयर में. इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्राई एयर. So this was regarding the relative abundance. Now let's see the physical properties. Okay. First is the atomic radii. So down the group, what is the trend in atomic radii down the group? There is no exception. Down the group, as the size, there is increase in the number of shells, the atomic radii increases. ठीक है, so as such कोई exception नहीं है, तो सीधा याद रख सकते हैं down the group atomic radii increases. Down the group atomic radii increases, and what is the reason? Due to addition of shells. So as the number of shells increases, the atomic radii increases due to addition of shells. ठीक है, and in a period when you compare, so size of the atomic radii of noble gases is larger than halogens. Second point is atomic radii of noble gases is higher than corresponding group 17, higher than halogens. ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है जनरली अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, बट नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता है. उसके दो प्रोबेबल रीजंस हैं. वन इज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनके जो ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड है. सो जब ये फुली फिल्ड होते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, जनरली देयर विल बी रिपल्शंस एंड दैट टेंड्स टू इंक्रीज द साइज. So one reason given is because the orbitals are fully filled, there will be electronic repulsions and that tends to increase the size. Fully filled electronic configuration, so that leads to inter-electronic repulsions, due to which there is slight increase in size. ठीक है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होगा और उसकी वजह से साइज इंक्रीजेस. द सेकेंड रीजन विच इज लाइक मोर अप्रोप्रिएट इज द टाइप ऑफ रेडियाई. नोबल गैसेस के केस में जो हम रेडियाई कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियाई. वैन डर वाल्स रेडियाई कैलकुलेटेड फॉर नोबल गैसेस is larger than covalent radii calculated for halogens.
van der Waals radii which is calculated for noble gases is larger than the covalent radii calculated for halogens. सी क्या होता है, जैसे halogens है, halogens क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. सपोज आई हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल, सो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इस तरह से ओवरलैप होता है, और वो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है उसका हाफ हम करते हैं, दैट गिव्स यू द कोवलेंट रेडियाई. सो दैट इज हाउ द कोवलेंट रेडियाई इज कैलकुलेटेड. जो मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है. उस हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस is taken as covalent radii. But in case of noble gases, since they do not form any bonds, so noble gases में atoms क्या होते हैं, इस तरह से दूर दूर होते हैं, isolated होते हैं, अलग अलग. अब यहाँ पर जो internuclear distance होगा वो कैसा होगा, वो ज्यादा ही होगा, because atoms are not in bonding situation, they are far from each other. So in the solid state, when the internuclear distance is calculated, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाता है क्योंकि एटम्स क्लोजली बॉन्डेड नहीं है. तो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब हम करेंगे दैट इज टेकन एज वैन डर वाल्स रेडियाई. बट हाफ करने में क्या हो रहा है, जब हम हाफ कर रहे हैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो एटम का जो रेडिया है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडियस भी आ रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी आ रहा है. एटम तो इतना ही है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाता है. बट दैट इज द ओनली वे वी कैन कैलकुलेट द रेडियाई. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रेडियस कैलकुलेट होता है वो बॉन्डिंग सिचुएशन से होता है. अब नोबल गैसेस बॉन्ड्स जनरली नहीं बनाते हैं, तो इसीलिए वहां पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज लार्जर देन द एक्चुअल इट इज नॉट इक्वल टू द 2r, इट इज नॉट इक्वल टू रेडियाई ऑफ 2 एटम्स, इज मोर देन दैट. सो यहाँ से जो रेडियस निकलता है दैट इज लार्जर देन द कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि इसमें तो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज, और यहाँ पर एटम्स आइसोलेटेड स्टेट में हैं, दूर दूर हैं. ठीक है. सो वैन डर वाल्स रेडियाई कैलकुलेटेड इज जनरली ग्रेटर देन द कोवलेंट रेडियाई. So this is another important reason why the radii of noble gases is larger than the halogens. Okay, now let's see the next property, that is ionization enthalpy. So what is the trend of ionization enthalpy down the group? Generally जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ionization enthalpy decreases because it is the energy required to remove electrons from the outermost shell. So if we talk about ionization enthalpy down the group, ionization enthalpy down the group. So what happens down the group? Atomic radii increase हो रहा है, तो distance between nucleus and outer electron increase हो जाएगा. So it will be easier to remove an electron. ठीक है. So less energy will have to be provided to remove an electron. So as the atomic radii increases, ionization enthalpy decreases. ठीक है. This is down the group. अब xenon जो होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इट इज क्लोज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2. ठीक है. जितना O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो O2 पॉजिटिव आयन बनता है, तो जितना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी है उसके क्लोज ही xenon का आयनाइजेशन एनर्जी होता है. दैट इज व्हाई द कंपाउंड ऑफ xenon वाज सिंथेसाइज्ड. नील बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी काफी सेम है, और क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उन्होंने xenon से भी क्या किया, xenon से भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया और xenon 1 पॉजिटिव आयन बनाया, एंड फाइनली कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड सिमिलर टू द कंपाउंड जो O2 पॉजिटिव से बना था, वैसा ही सेम कंपाउंड xenon का बनाया. ठीक है. क्योंकि इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी सेम था. सो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जैसे साइज बढ़ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है.
ठीक है. So xenon has less ionization energy, so that is why the compounds were synthesized. But in general, if you talk about IE in a period, along the period ionization enthalpies क्या होती है? Increase. And because they have fully filled orbitals, as they have stable electronic configuration, fully filled orbitals है. Fully filled orbitals are related with extra stability, or we can say they have stable electronic configuration, so they have high ionization energies, ठीक है, respective periods. Because of the fully filled or stable electronic configuration, they have the high ionization energies. ठीक है. और सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑफ हीलियम. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. डाउन द ग्रुप IE क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. लेकिन हीलियम का साइज छोटा है एंड इट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस. द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड. So helium has the highest ionization energy in the entire periodic table, right? So because of stable electronic configuration, fully filled shells, they have highest ionization energies. Okay. The next property is electron gain enthalpy. अब क्या है, देखो नोबल गैसेस फुली फिल्ड है ना, तो जनरली वो पॉजिटिव आयंस भी नहीं बनाते क्योंकि उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज हैं. तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, विच इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नॉर्मल रिएक्शंस. तो जनरली दे डू नॉट फॉर्म आयंस. ठीक है, नियॉन 1 पॉजिटिव, आर्गन 1 पॉजिटिव, इस तरह के आयंस नहीं बनते. क्यों? क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. सो जनरली दे डू नॉट फॉर्म एनी पॉजिटिव आयंस. सिमिलरली जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फेवरेबल नहीं है, वैसा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है, सो दे डोंट नीड टू गेन और लूज इन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो जनरली दे डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जीज, एंड दे डू नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस एज वेल, क्योंकि गेन करने की जरूरत ही नहीं है, आउटर शेल्स आर फुली फिल्ड. सो अगर फिर भी हमने देखो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इज 2-8, फर्स्ट शेल इज कंप्लीट, सेकंड शेल इज कंप्लीट, फिर भी हमने इलेक्ट्रॉन डालना है तो वो कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में जाएगा. ठीक है, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवरेबल, बट इवन इफ यू वांट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन वी विल हैव टू प्रोवाइड एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to an isolated gaseous atom. ठीक है, suppose if I have neon and I want to add an electron, so it will convert into neon negative ion, which is उसका configuration क्या होगा neon negative का? 281. अभी कोई stable configuration नहीं है, तो एक stable state से हम unstable state में जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा जो process होता है which is not favorable stability wise, this will require a large amount of energy. So electron gain enthalpy will have a large positive value. Okay, what is electron gain? When the enthalpy change when an electron is added to an isolated gaseous atom. जो भी enthalpy change या energy change है उसको electron gain enthalpy बोल रहे हैं, right? और जब वो favorable होता है electron का addition, so energy is released, delta H has negative values. जब वो फेवरेबल नहीं है तो एनर्जी यूज होगा और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवरेबल, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज, व्हिच मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एनर्जी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू कीप द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल. अब देखो थर्ड शेल ना न्यूक्लियस से दूर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, सो ज्यादा समय इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में नहीं रहने वाला, वो
जब तक हमने एनर्जी दिया है तब तक तो रहेगा, अदरवाइज वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। सो अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दिया थर्ड शेल में, तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उसके ऊपर वीक है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, इट विल बी रिमूव्ड इजीली। सो दैट इज व्हाट इज नॉट फेवरेबल, ठीक है। सो हाई पॉजिटिव values, large positive values of electron gain enthalpies of all the noble gases are recorded, ठीक है। So all of them show positive, large positive values, meaning इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी फेवरेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी फेवरेबल नहीं है। रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि फेवरेबल नहीं है। So both the processes, loss and gain, both are unfavorable. Okay. Now let's see the other properties. So how do they exist? They are all monoatomic. They do not combine because what is the cause of combination? Why do the elements combine? They combine to complete their octets to become more stable. But इनके octets, इनके outer shells already complete है. So generally they do not combine with other atoms. So that is why they are monoatomic. Okay. So the other properties are they are monatomic, colorless, odorless, no specific color, no specific odor, no specific taste, and sparingly soluble in water. Sparingly less soluble in water, because there is no polarity as such. Non-polar molecules हैं, तो water is polar, तो कम soluble होंगे. Monatomic because they don't combine since their octets are complete. Colorless, odorless, tasteless, less soluble in water because they are non-polar, so the interaction with water will be very weak, and they have low melting and boiling points. Why? Because the type of forces are weak van der Waals forces. ठीक है, कैसे फोर्सेस है? van der Waals फोर्सेस हैं, और क्योंकि ये मोनोटॉमिक है तो, और साइज जैसे हीलियम का बहुत छोटा है, तो हीलियम का साइज बहुत छोटा है तो उसमें जो फोर्सेस होंगे वो वीकेस्ट होंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज. van der Waals फोर्सेस का ये ध्यान रखना है, van der Waals फोर्सेस are directly proportional to size of the molecule or the molecular mass. It depends upon size and molecular mass of the substance. Now size of helium is very small, molecular mass is very small, so van der Waals forces कैसे होंगे? Very weak. Because of very weak van der Waals forces, helium has the lowest boiling point. ठीक है, नेगेटिव में होता है, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और साइज इतना छोटा है कि ये रबर वगैरह से डिफ्यूज कर जाता है. इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू रबर, प्लास्टिक, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज. ठीक है, एंड एज द साइज इंक्रीजेस, लेट्स सी ज़ीनॉन, तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, तो van der Waals फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे. सो डाउन द ग्रुप, एज द van der Waals फोर्सेस इंक्रीज, ठीक है, van der Waals फोर्सेस क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप. सो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल ऑल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ठीक है, और हीलियम का कैसा होगा? वीकेस्ट van der Waals फोर्सेस है, सो इट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, it is only 4.2 Kelvin. So when you convert it into Celsius, you'll come to notice like very, very low. And then helium has an unusual property of diffusing through
लैब मटेरियल्स जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, बिकॉज द साइज इज वेरी स्मॉल. अब रबर वगैरह भी जो होते हैं ना अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ये रबर, प्लास्टिक वगैरह. तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, स्पेसेस होती है बीच में. तो जो स्पेसेस वगैरह है उससे ये डिफ्यूज कर जाता है. ठीक है. सो अमॉर्फस सॉलिड्स जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है. सो बिकॉज देयर आर स्पेसेस इन बिटवीन द molecules, so it can diffuse through those spaces. So it is so small in size and it has this property of diffusing through most of the amorphous solids like rubber, glass, plastics. और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन एज सच. सो डेंसिटी डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज करता है. और डेंसिटी के लिए हम क्या रीजन देते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली टू वॉल्यूम. बट मास इंक्रीज इज मोर देन द वॉल्यूम इंक्रीज, देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप. ठीक है, डेंसिटी दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम. लेकिन मास इंक्रीज ज्यादा होता है वॉल्यूम इंक्रीज से. सो डेंसिटी जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप because the mass increases more than the volume increase. Okay, now let's see the chemical properties. These were some of the physical properties. Now chemical properties. Now earlier they were called as inert gases because they were totally unreactive. Now what is the reason for the inertness, for less chemical reactivity? Why were noble gases called as inert, or why are they less reactive? Okay. The inertness to chemical reactivity. What are the reasons for the inertness, or they are least reactive? So what was the reason? What are the reasons for this inertness to chemical reactivity? Why they are least reactive? So what is the reason for the chemical inertness? One, they have stable electronic configurations. ठीक है, they have stable electronic configuration. Fully filled orbitals. The outer shell is fully filled. ठीक है, अब stable configuration है तो वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करना दोनों ही फिजिबल नहीं है. So because loss of electron as well as gain of electron both are not favorable. So in terms of energy हम क्या बोलेंगे, loss of electron के लिए क्या चाहिए, ionization enthalpy. So they have high ionization energies. Gain of electron easily कब होता है, जब electron affinity high होता है, but they have low electron affinity, or we can say they have high positive electron gain enthalpy values. ठीक है, because of the fully filled electronic configuration, stable electronic configuration, loss of electron के लिए high ionization energy चाहिए, favorable नहीं है. ठीक है, और gain के लिए बहुत ज्यादा high positive value चाहिए. So energy wise favorable नहीं है. इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो भी बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एंडोथर्मिक and addition of electron is also endothermic. So large amount of energy will have to be provided